नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले समाजरे नारीर स्थान एवं सेई क्रमरे ऊनविंश शताब्दीर द्वितीयार्धरे भारतवर्षर जो दुई जन महामनीषी आम आगरे उभा हुअंती सेई मानंक भितरे स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद अन्यतम। पूर्वरु ए बाबदरे मध्य कुहा हेछि जे अमेरिका और यूरोप रो एक अन्य पृथ्वी सहित परिचित होई भारतवर्ष संपर्क रे स्वामी विवेकानंद सतेयबा एक अन्य नयन लाभ करिथिले। सेई समय रे से भारतवर्ष को जेउ सबु पत्र लिखिथिले सेही गुडी करू ही आमको ताहार स्पष्ट प्रमाण मिली पारिबो। पाश्चात्य समाज रे नारी को से शक्तिमयी रूप रे देखिथिले, पुरुषर अनुगामिनी नुहे सहगामिनी रूपे से दर्शन करिथिले। भारतीय नारी मानंकर दुर्दशा ताहार एक दयनीय समांतर रूप तांको आखिरे स्पष्ट रूप रे प्रतिफलित हेइथिला। तेबे एई दुर्दशार दयनीय रूपर समांतर रूपे तांकु प्राय असह्य बोध मध्य होइथिला। भगिनी निवेदितांक सहित तांकर जावतीय कथोपकथनरु आमर ताहा ही हृदबोध हेइजिवो। भारतीय जाया जननी और भगिनी मानंकर एक सम्मानित अन्य परिचय से सतेअबा सेई पाश्चात्य भूखंडरु ही कल्पना करिबाकू आरंभ करिथिले और भारतवर्ष को प्रत्यावर्तन करी आसिबा परे आपनार एकाधिक वक्तृतारे और लेखारे सेई विचारटी को प्रकाश करिथिले। नाना कारणरू स्वामी विवेकानंदंक परे रामकृष्ण मिशन रो कार्य अवश्य प्रधानतः शिष्टवर्गंक मध्यरे सीमित होई रहीगला। जागृतिर कार्यक्रमटी मुख्यतः एक सेवा कार्य को संकुचित हेई आसिला। स्वामी विवेकानंदंकर स्वतंत्र ऐतिह्यटी जेपरी एक गौण स्थान आदरी रहिला एवं संभवतः सही कारणरू अध्यात्मर मार्गरे एक सामाजिक विप्लवर संदेश मुख्यतः लोक हितैषिता मध्यरे शीतल होई रहीगला। तथापि स्वामीजींकर अग्निमयी कथा एवं मनुष्य जीवन को संस्कारगत बहु प्रसीमनर गुहा भितरु विमुक्त करी आनिबा लागी तांकर सकल स्वप्न गुड़िकर महत्व अद्यावधि मध्य प्रासंगिक हेई रहिछि। सेई क्रमरे आमे देखिबा श्री अरविंदंकर कथा। पुरातन विभिन्न सभ्यता और समाज रे नारीर स्थान निरूपण करिबाकू जाई श्री अरविंद यूरोपीय मध्ययुगर संसार त्यागी माने नारी को सतेअबा एक अवस्तु बोली घृणा करुथिले बोली कहिसंती। सेई संसार विरक्त माने भाबुथिले जे बाबाजी मानंकु प्रलोभन रे पकाइबा उद्देश्य रे ही भगवान नारी मानंकु सृष्टि करी पृथ्वी को पठाई थिले। भगवान तथा नारी मानंक विषय रे एहा द्वारा केते निकृष्ट धारणा पोषण करा जाइछि बोली
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ମଣିଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ବିରକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୂପ ଆରୋପ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ କରାଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ପଶୁ ଅଂଶଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଦେଖାଏ, ନାରୀକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ରଖେ, ନାରୀ ଉପରେ ଅଧିପତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଉପଦ୍ରବୀ ସମାଜରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଦେଖି ଆସିଛି। ମିଲ୍ଟନଙ୍କର କାବ୍ୟରୁ ହି ଫର୍ ଗଡ୍ ଓନ୍ଲି, ସି ଫର୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ପଂକ୍ତିଟିର ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବେକହୀନ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆପଣାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ମୂଳତଃ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ହିଁ ଏପରି ଏକ ବିଚାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବାକୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯାଇ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ କେବଳ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦେଖିବ, ଏକ ଆଖିଆ ଭାବରେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଓ ନାରୀ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁମାନ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଫଳରେ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ସତେଅବା ଏକ ନ୍ୟୁନତର ଜୀବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ଆଗ, ତାପରେ ତାହାରି ଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାହାର ଗତିଶୀଳ ପରିଣାମ ରୂପୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ହୁଏତ କୌଣସି ଅବକ୍ଷୟର ଯୁଗରେ ସମାଜର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସହିତ ସମତୁଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସେଥିରୁ କ୍ରମେ ନାରୀକୁ ଆବର ଓ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ସମତୁଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଅପପରମ୍ପରା ବା ଦୁଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଅନ୍ତତଃ ସମାଜ ବିଧାନ ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ ଲ ଏଣ୍ଡ ଥିଓରି ଏଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ। ମାତ୍ର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଏହି ବିଧାନଟି ହୁଏତ କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଅଧସ୍ତନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନାରୀର ଜୀବନ ପ୍ରଧାନତଃ ଗୃହ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
एपरी एक आध्यात्मिक समाजर नक्शा आनी आम आगरे उपस्थापित करिसंती जेतेबेले कि मनीषर चेतना परस्पर भितरे दिव्यतार प्रत्यक्ष करिवो तेणु केही काहारिकु गिळी पकाइबो नाही अथवा अधस्तन करी रखिबो नाही। मनर फिसाद गुड़िकु अतिक्रम करी गले मनुष्य एही सोपानरे जाई पहुंची पारिबो। आपनार देह मन ओ प्राण जेतेबेले चैत्य द्वारा परिचालित हेबो चैत्य ही पूर्व भागरे रहिबो एवं तेणु आउ जनकु अनाइबा मात्रे के सेई चैत्य ही दृष्टिगोचर हेबो। एही अतिक्रमण फलरे प्रचलित अर्थनीति राजनीति शोषण धर्मी पारिवारिक व्यवस्था सबु किछि बदली जीव। परवर्ती तथा पृथ्वी लागी अवश्यंभावी होई रहिथिबा एही प्रक्रियाटिकु श्री अरविंद जीवनर एवं समाजर आध्यात्मिकरण बोली कहिसंती। एक सचेतन सत्ता हिसाब रे आमे पुरुष और नारी समस्ते जेतिकी क्रियाशील भावरे सहयोग करि पारिबा पृथ्वी रे सेही नूतन संभावनाटी सेतिकी शीघ्र अवतरी आसिबो। सबल बा वीरर अहिंसा हेउची महात्मा गांधी द्वारा आविष्कृत अस्त्र सत्याग्रह। एही अस्त्र को से एक दुर्धर्ष साम्राज्य विरुद्ध रे प्रयोग करिथिले ओ समग्र विश्व रे सबु काल और सबु देश पाई सकल संगठित अन्याय विरोध रे प्रतिवाद तथा प्रतिरोध करिबा लगी मनुष्य जाति हाथ रे एक अभिनव अस्त्र आनी देइथिले। भारतवर्षर बहु असमर्थता को गांधीजींकर संग्राम अभावनीय भावरे दूर करी देइथिला एवं देशरे एक नूतन विश्वासर जागृति आनी देइथिला। सत्याग्रह हेउची मूलतः सहिबा गुण मानि जीवार गुण नुहे। सहिबार गुण उत्पीड़न को न मानी ताहार परिणाम स्वरूप आसुथिबा कष्ट और दुख को बरण करिनेबार गुण। एथि लगी प्रधानतः एक आत्मपरिचय लोड़ा। असल बल और असल मन्यु अर्थात जे अन्यायर विद्रोही से निज भितरे रहिछि सेई सत्यटीर आविष्कार करिबार आवश्यकता रहिछि। महात्मा गांधींकर सत्याग्रह आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे भारतीय नारी को ही सतेअबा एक मुख्य भूमिका रे अवतीर्ण कराई आनीथिला। आगे तो राजनीतिक संग्राम रे विद्वान दरकार हेउथिले प्रधानतः बड़गरर व्यक्ति माने दरकार हेउथिले। नेता होई पारिबार विचक्षणता रहिथिबा वकील और पंडित माने दरकार हेउथिले। मात्र सत्य लागी स्वतंत्रता लागी कष्टबरण करिबा लागी पुनी बुद्धि विद्या बा धनाढ्यतार बा की आवश्यकता रहिछि। अपना भितरे केवल एक ईश्वरीय क्रोध एवं जावतीय कष्ट को स्वयं बरण करिनेबार एक ईश्वरीय साहस रहिथिले हेला। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे नारी माने जेते संख्यारे तथा जो विस्मयकारी प्रत्यय और उत्सर्ग भावना सहित जोग देबाकू घर छाड़ी बाहरी आसीथिले पृथ्वी रे तार तुलना नहीं। जने साधारण नारी भितरे जे शतकु शत एते शक्ति रहिछि ओ उपयुक्त आह्वान पाई पारिले सेमाने जे अत्यंत
अविश्वसनीय भावरे सेई शक्तिर परिचय देई पारिबे महात्मा गांधींकर नेतृत्व द्वारा परिचालित आमर स्वाधीनता संग्राम सेई सत्यटीर उपलब्धि करि पारिथिला, बड़मानंकु मध्य अबाक करि देइथिला। स्वाधीनता आंदोलन को बड़ घर मानंकरू केवल सरोजिनी नायडूंक परी उच्च शिक्षिता नारी माने बाहरी आसी नथिले, रमादेवींक परी निपट परदानसीन बहु माने मध्य आसीथिले एवं निज निज जीवन रे आहुरी आगकू जाई जणे जणे साहसिनी लोकधात्री रूपे निजर परिचय देइथिले। मेदिनीपुर मातंगिनी हाजरा जातीय संग्राम रे एपरी एक विजयिनीर भूमिका ग्रहण करि पारिबे बोली क्यों शिष्ट ज्ञानी गुणी माने कल्पना करिथिले। घरे गेल्हा हेई बढुथिबा नारी जेतेबेले महात्मा गांधींकर आह्वान सुनी निज देहर अलंकार गुड़ी को काढ़ी देश कामरे लागिबो बोली तांको आगरे रखी देउथिला ओ ता परे निजर एकांत व्यक्तिगत सुखी जीवनटी को परित्याग करी सत्याग्रह समर रे बाहरी पड़ुथिला। सेतेबेले सतेअबा कौनसी असंभव संभव हेई जाउथिला। भारतीय नारी मानंकर क्षेत्र रे महात्मा गांधींकर आंदोलन एहीपरी बहु असंभव को सतकु सत संभव करिथिला। गांधीजींकर रचनात्मक समाज परिवर्तन मूलक जावतीय कार्यक्रम रे मध्य नारी माने मुख्य अंश ग्रहण करिसंती एबे मध्य करूछंती। गांधी अनेक समय रे कहुथिले जे तांको भितरे नारीटीए रहिछि जिए कि तांकु अहिंस संग्रामर मार्गरे विशेष भावरे उद्बुद्ध करुछि, मार्ग देखाइछि एवं पृथिवीर नियति विषय रे साहसिक कल्पना मान करिबाकू विश्वास जोगाई देइछि। महात्मा गांधींकर तपस्या तळु आरंभ हेइथिला। सेइथि लागि प्रकृतरे अनेक उपरकू से उठिबार स्पर्धा करि पारुथिला। राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा, सेवा, धर्म और आध्यात्मिकता प्रभृति जावतीय क्षेत्र रे गांधीजी सतेअबा आमर मानविक आकुति गुड़ी को भूई छुआई आनी थिले। नारी कहिले सबु नारी को बुझाए, तेणु नारी आंदोलन बा नारी कूलर जागृति कहिले अधिकांशतः शुभाकांक्षी पुरुष मानंक द्वारा प्रचोदित एवं परिचालित और सभा तथा वक्तृता मध्यरे सीमित प्राय एक अवसर विनोदी उत्साह को जे आदौ बुझिबा उचित नुहे। अन्य समस्तंक ठारू संभवतः महात्मा गांधी ही आमकु सेई सत्यटी विषय रे सावधान करि देइछंती। पुरुष भितरे नारीटीए रहिछि, सेई परी नारी भितरे मध्य पुरुषटीए रहिथिबो। तेणु नारी आंदोलन बा नारी जागरणर रणपा उपरे चढ़ी नारी पुरुष को अनुकरण करिबाकू काहींकी अपना मुक्तिर धर्म बोली ग्रहण करिबो। पृथिवीर नारी मुक्ति आंदोलन बहु प्रारंभिक सोपानर उत्तेजना को अतिक्रम करी एबे एही प्रश्नटी को गंभीर भावरे पचारिबाकू आरंभ कलानी। भारतर जेउ चारि महान मनीषी मानंकर कथा एहा पूर्वरु आमे उल्लेख कलु। रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एवं श्री अरविंद सेमाने मध्य केबे हेले नारी पुरुषर अनुकरण करी अपनार मुक्ति विधान करू बोली प्रस्ताव बा परामर्श देई नाहंती। नारी और पुरुष
उभय भितरे सबाग मनीषटीए रहिछि। सेई मनीषटी काहारी भृत्य होई रहिबाकू चाहे नाही अथवा काहा उपरे प्रभुत्व विस्तार करिबाकू भी इच्छा करे नाही। सीए निजर परिपूर्ण प्रस्फुटन चाहे, निजकू परिपूर्ण भावरे गढ़िबाकू चाहे। नारी और पुरुष प्रत्येक भितरे अनंत संभावनापूर्ण एई मनीषटी होउछि ता भीतरर देवता। देवता कहीं देवता लगी बाट ओगाड़िबो, तेणु बाट चलिबा द्वारा ही नारी और पुरुष उभय अपनार श्रृंखल गुड़ी को छिन्न करी बाहरी आसी पारिबे। जीवन तीर्थरे परस्पर को यथार्थ भावरे भेटी पारिबे एवं जीवनर यथार्थ उत्तरण हेई पारिबो, परिपूर्णता मध्य लाभ करि पारिबो। समाजरे नारीर स्थान संपर्क रे आमे जो आलोचना करूछे, पाश्चात्यर परंपरा रे आमे जदि देखिबा एई नारीवाद रो एक इतिहास रही एवं नारी स्वाधीनता, नारी प्रति सम्मान, सबु रकमर सुविधा सुजोग बाबदरे तांको पदमर्यादा प्रदान करिबा, ए सबु दाबी को मुख्यतः से माने ओमेन्स मूवमेंट बा फेमिनिस्ट मूवमेंट हिसाब रे ग्रहण करिसंती एवं तार दुई चारिटी मुख्य प्रॉपर्टीज बा संज्ञा जदि आमे देखिबा, साधारण भावरे एन आवेरे क्रोमाबाई से कहूथिले जे नारीवाद एक चिंतन जहा मत व्यक्त करे नारी माने पर्याय क्रमिक भावरे आधुनिक समाज रे अवहेलित एवं नारी और पुरुष मध्यरे समान सुविधा सुजोग निमंते ओकिलाती करे। माने तांकर भाषा रे जे फेमिनिज्म रो डॉक्ट्रिन होउची इक्वल जो इक्वालिटी, इक्वाल अपॉर्चुनिटी एवं मुख्यतः पुरुष एवं नारी मानक क्षेत्र रे। तेबे नारी मुक्ति आंदोलन को जो नारीवाद हिसाब रे कुहा जाए, एक सामाजिक आंदोलन हिसाब रे तांको पुरुष मानक सहित समान अर्थ रे पदमर्यादा प्रदान करा जिबा उचित बोली मध्य कुहा जाए। तेणु साधारण भावरे कहिले हेबो जे नारीवाद एक पद्धति को दर्शाए जहाँ समग्र विश्व रे नारीर शोषण और पुरुष ठारू न्यून रूप रे गुरुत्व दिए। तेबे आमे निसंदेह कहि परिबा जे यह होची एक सामाजिक तत्व अभ्यास को बुझाए जार मूल लक्ष्य होची नारी को पुरुषर प्राधान्य और शोषण रु मुक्त करिबा। तेणु एठी दुईटी वर्ग ही रही जाउछंती, जने होउछि शासक बा शोषक आउ जने शोषित बा शासित। एई संपर्करु ऊर्ध्व को जाई यथार्थ नारीवाद संभव हेई पारिबो भारतीय दृष्टि रे। तेबे पाश्चात्य रे बा यूरोपियन समाज रे जो नारीवादर तीनोटी मुख्य पर्याय अछि, से भितरे आमे देखिबा प्रथम पर्याय बा प्रथम स्रोत आरंभ हेइथिला 19 शताब्दीर शेष भाग एवं 20 शताब्दीर प्रथम भाग रे इंग्लैंड और अमेरिका रे। एई पर्याय रे विवाद निमंते समान चुक्ति एवं माने विवाह पाई अथॉरिटी बा अधिकार संपर्क रे एवं नारी मानंकु पैतृक संपत्ति रे अंशीदार उपरे प्रथम पर्याय रे मत रखा गला। 19 शताब्दीर शेष भागरे राजनैतिक क्षमता महिला मानंकर अंशीदार कथा चिंता करी सेमानंक निमंते भोट दान रो अधिकार दाबी कला। तेणु 1848 मसीहारे सेनेका फॉल्स सम्मिलनी ए दिगरे एक माइल खुंट हिसाब रे ग्रहण करा जाए। एठारे
300 पुरुष और नारी प्रतिनिधि एकत्रित होई नारी समानता निमंते आंदोलन आरंभ करिथिले। एलिजाबेथ कैडिस्टाइन यार घोषणानामा प्रस्तुत करिथिले। एथिरे नूतन चिंताधारा और पंथा उपरे आलोकपात करा जाइथिला। 1918 मसीहारे जनप्रतिनिधित्व आईन बा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1918 प्रस्तुत करा जाई 30 वर्षरु ऊर्ध्व और निजस्व घर थिबा महिला मानंकु भोट अधिकार प्रदान करागला। 1928 मसीहारे 21 वर्षरु ऊर्ध्व समस्त महिला मानंकु एही अधिकार प्रदान करा जाइथिला। एही पर्याय रे विशिष्ट नारीवाद वोल्टायर डी क्लेयर एवं मार्गारेट सैंगर महिलार यौन जीवन उत्पादन और अर्थनीतिक स्वाधीनतार आवश्यकता उपरे मत देइथिले। एलिजाबेथ कैडिस्टाइन, सुसान बी एंटोनी, लुसी स्टेन, ओलिम्पिया ब्राउन एवं हेलेन पीट आदि नारीवादी माने कृतदास उच्छेद उपरे गुरुत्व देइथिले। कारण कृतदास उच्छेद नहेले नारी को अधिकार प्रदान करिबा संभव नुहे। अमेरिका संविधान रे 19तम संशोधन बलरे समस्त राज्यर महिला मानंकु भोट अधिकार प्रदान सहित नारीवादर प्रथम पर्याय परिसमाप्ति घटिथिला। द्वितीय पर्याय आरंभ हैला 1960 रु 1980 पर्यंत एवं एडले फ्रीडमैन अति सुंदर भावरे या उपरे वर्णना करी कहिसंती जे प्रथम पर्याय नारी मतदान व्यवस्था सहित जड़ित थिबा समय रे द्वितीय पर्याय समानता उपरे गुरुत्व देइथिले। नूतन वामपंथी बा न्यू लेफ्टिस्ट मानंकर उद्रेक जोगु एही समय रे महिला मानंकर स्वर उग्र तीव्र शाणित और दृढ़ हेबाकु लागिला। यौन जीवन और उत्पादन एवं यार स्वाधीनता उपरे अधिक ध्यान दिया जाइथिला। 1968 और 1969 मसीहारे अमेरिकार आटलांटिक शहर रे हेइथिबा मिस अमेरिका प्रतियोगिता को पशुमानंकर पैरेड बा कैटेल पैरेड कही समालोचना करिथिले। कारण यह नारी को एक वस्तु भावे उपस्थापित करुथिला। यह पितृकैंद्रिक समाजर वार्ता बहन करिथाए। सेमानंक मतरे पितृ प्राधान्य समाज को सबु क्षेत्र रे विरोध करिबा आवश्यक। महिला निजर घरोई एवं कम प्राप्त और गणना करा जाउ नथिबा कारणरू निजको मुक्त करिबा उचित। सुंदरी प्रतियोगिता को विरोध करी नारीवादर प्रवक्ता माने एक विरोध प्रतियोगिता आरंभ कले जेउठारे एक पुत्तलिका उपरे नारी मानंकर प्रतिक्रिया स्वरूप अंतः वस्त्र जोता प्रसादन सामग्री इत्यादि सबु फोपड़ा जाइथिला। सुंदरी प्रतियोगिता द्वारा नारी को वस्तु भावरे उपस्थापन करिवार यह थिला एक दृढ़ प्रतिक्रिया। वीमेन ओनली एवं कॉन्शियस राइजिंग ग्रुप्स नामरे अनेक गुड़िए संगठन गढ़ी उठिला। विश्वरे निजर स्थान को मजबूत करिबा पई नारी माने बा नारीवादी माने विभिन्न प्रकार प्रकाशन जेपरिकी दि ब्लीच मैनिफेस्टो एवं सिस्टरहुड इज पावरफुल रो साहाय्य नेले। नारीवादी माने पितृ प्राधान्य पुंजीवाद, विषम लिंग संपर्क, महिलार स्त्री और माँ हिसाब रे भूमिका, लिंगगत भूमिका और लिंग मध्यरे पार्थक्य एवं समाज रे उभयंकर पार्थक्य को नहीं कार्य बंटन को विरोध तथा समालोचना करुथिले। एवं एई पर्याय रे माने द्वितीय पर्याय रे कारोल हानिस व्यक्तिगत हेउछि राजनीति बा पर्सनल इज पॉलिटिकल एई स्लोगान देले। यार अर्थ
नारीर सांस्कृतिक और राजनैतिक मर्यादा तार व्यक्तिगत जीवन सहित जड़ित। पुरुषर प्राधान्य सबुठारे रहिथिबारु नारीर विकास सठिक भावरे होई पारे नाही। नारी पुरुष द्वारा और पुरुष निमंते शोषण और अवहेलार शिकार हुए। एथिरु मुक्ति निमंते नारी ताहार पारंपरिक कार्य यथा सहयोग, त्याग, शांतिपूर्ण परिपालन आदि त्याग करिबाकु पड़िबो। नारी मुक्ति बा वोमेन्स लिबरेशन आंदोलन द्वारा यह संभव। नारी मुक्ति चिंताधारा प्रथमे अमेरिका रे विकास लाभ करिथिला। छापा गणमाध्यम क्षेत्र रे 1966 मसीहा बेलकू एई शब्दटी व्यापक भावरे व्यवहृत हेबाकू लागिला। ग्लिरिया जीन वाटिन्स नामक आफ्रो अमेरिकीय नारीवादी प्रथम थर पाई नारी मुक्त मंच बा वोमेन्स लिबरेशन फ्रंट द्वारा प्रकाशित पत्रिका रे रैम्पेंट बेलहुआ नामक छद्मनाम व्यवहार करथिले। 1984 मसीह रे फेमिनिस्ट थियोरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर पुस्तक रे एई नारी मुक्ति आंदोलन उपरे से पुनश्च गुरुत्व देइथिले। बेटी फ्रेइडान निजर पुस्तक दि फेमिनाइन मिस्टिक 1963 मसीह प्रकाशित होईची, जेउंटी नारी स्त्री और माँ भावरे अत्यंत खुशी बोली जहा कुहा जाए ताहा एक भ्रमात्मक चिंताधारा बोली मत प्रकाश करिसंती। नारी शिक्षा और नारी नियुक्ति उपरे से गुरुत्व देइथिले। एहा द्वारा घर मध्यरे सीमित जीवनरू से मुक्त होई पारिबो। नारी ताहार स्वामी और पुत्रर परिचय रे निजको परिचित कराइबा एक भ्रमात्मक चिंताधारा। द्वितीय विश्वयुद्ध परे वैषयिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कौशलर विकास द्वारा अमेरिकार घरोई जीवन रे सेमानंकर अवदान को अर्थहीन और मूल्यहीन करिछि। नारीवादर प्रथम और द्वितीय पर्याय मध्यरे अनेक पार्थक्य रहिछि। प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय अपेक्षा अधिक जनप्रिय। प्रथम पर्यायटी पाश्चात्य धनी राष्ट्र गुड़िकर मध्यवित्त श्रेणीर नारी मानक मध्यरे सीमित थिबा समय रे द्वितीय पर्याय विकसित राष्ट्र गुड़िकर व्याप्त होई समस्त महिला मानक निमंते उद्दिष्ट थिला। एथिरे नारी सचेतनता उपरे प्राधान्य दिया जाइथिला। नारी संघर्ष को श्रेणी संघर्ष भावरे क्लास कॉन्फ्लिक्ट बा क्लास वार भावरे गणना करागला। एही संघर्ष नारी मानक एकता उपरे गुरुत्व देला। तापरे आसिला तृतीय पर्याय नारीवादर थर्ड वेव बा तृतीय स्रोत। 90 दशकर प्रथम भागरे एई तृतीय पर्याय आरंभ हैला एवं द्वितीय पर्यायर उग्र चिंताधारा और नारी को एक स्वतंत्र परिचय देवारे अक्षम हेबारु एई नूतन पर्याय आरंभ हैला। यह सार्वजनीन नारीत्व, नारीर शरीर और यौन जीवन आदि उपरे गुरुत्व प्रदान करिथिला। यार मुख्य प्रवक्ता माने हेले ग्लोरिया अंचलदुआ, बेल हुक्स, चेला सांडोभाल, चेरी मोराग, मैक्सिनाई हंग किंगस्टन इत्यादि। तेबे आमे एकविंश शताब्दीर एई 2 दशंधि अतिक्रम करिबा भितरे एकथा मध्य देखुचे जे फेमिनिज्म बा नारीवाद बा समाजरे नारीर स्थान ताकू पुरुष ठारू एक स्वतंत्र बायोलॉजिकल बा फिजिकल वर्ल्ड रे स्वतंत्र दृश्यमान हेले मध्य ए विश्व बा ए सृष्टि होउची एक ऑर्गेनिक होल। ये आमर अज्ञानता, आमर अक्षमता, आमर इंद्रिय बा केवल मन को ही एकमात्र तराजू हिसाब रे देखुथिबा कारणरू आमे जीवनर गभीरता, व्यापकता बा उच्चता को मध्य ठौरेई पारुनहु।
तेणु समाजरे नारीर स्थानर कथा जदि देखिबा ये मानवीय संबंधरे मनीषर चेतनार उत्तरण हेले से श्री अरविंदंकर विचार अनुसारे से पुरुष और नारी उभयर ऊर्ध्व को चली जीव अर्थात एई देह सचेतनता बा लिंग सचेतनतार ऊर्ध्व को गले संसार रे एपरी साधारणतः कौनसी कर्म नहीं जहा उभयंक द्वारा सठिक भावरे संपादन करा जाई पारिबो नाही। तेबे ए बाबदरे अधिक आलोचनार मध्य आवश्यकता अछि। आवश्यक पड़िले से गुड़िक आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिवु। आज एतिक थाउ। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।